Hello, everybody. Welcome back. Today, we are going to be doing chapter number 5 from the NCERT book, which is called Fundamental Unit of Life. Until now, the chapters we have done were based on chemistry, but this is now biology for the next few chapters. There's no distinction in your book, but this is a slight distinction, and this is the absolute basic of biology that we are going to be doing today. So, this is going to be in 3 parts, this video, so you have to ensure that you watch all 3 parts to understand this chapter completely. So today we are going to be doing part 1. Okay, so the first thing that the name of the chapter is the fundamental unit of life. Now when you talk about fundamental, what does this word mean? Fundamental, like you guys also say, हम भी कहते आ रहे हैं कि फंडे क्लियर होने चाहिए जब करते हो तो फंडा होता है. What is a फंडा और fundamental? It is basically the basic unit, the basis of everything is the fundamental, right? So the fundamental unit of life is जो सबसे basic unit of life होता है ना, कि that is the main, that is उसके ऊपर ही सब build होता है, that is called fundamental. So that is what we are going to be seeing today. So how it came through was that Robert Hooke, he was a scientist. In 1665, he took a thin slice of cork. What is cork? कॉर्क का बॉल भी होता है, वो खेलते हैं क्रिकेट. बट व्हाट कॉर्क इज दैट इट कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, यानी बार्क होता है जो ट्री के ऊपर उसमें आता है. एंड व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ स्मॉल थिन सेक्शन ऑफ इट एंड देन ही सॉ इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. उसने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था कुछ, तो ही मैग्नीफाई कर रहा था, ज्यादा नहीं. बट व्हाट ही सॉ वाज अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा 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 कुछ दिखा उसको, ऐसा ऐसा. ठीक है. एंड ही सॉ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स. तो व्हाट ही सेड कि अरे ऐसे ये तो रूम जैसा दिख रहा है. सो ही स्टार्टेड कॉलिंग देम सेल्स, व्हिच इज लैटिन फॉर लिटिल रूम्स. एंड this was the first time that somebody had seen a living thing under a microscope and seen that it was made up of these small cell or room like structures. So this came to be known as cell. And so what is cell? Cell is the fundamental structural unit of living organisms. अभी तक हमने देखा है कि atom is the basic fundamental unit of matter. But for life, for living organisms, cell is the fundamental structural unit for living organisms, right? ये याद रखो, fundamental structural unit of living organisms or the basic functional unit of life. Remember this also, basic functional unit, यानी वो पूरा function करता है, it has its own functions. It is because of cells that life itself functions. So cell is the fundamental structural unit and the basic functional unit of life. Okay. So एक एक्टिविटी है आपके बुक में, दैट यू हैव टू पील द एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ द अनियन. अनियन का आप जब बल्ब निकालते हो तो उसकी जो स्किन होता है तो इसे ऐसे गोल होता है, राइट? ऐसे. तो जो अंदर का साइड होता है उसको कॉन्केव कहते हैं. एंड एपिडर्मिस, यू ब्रेक दिस वर्ड डाउन, एपी एंड डर्मिस. एपी मीन्स आउटर, dermis means skin. So the outer layer of the inner side of the onions, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर की जो लाइन है वो निकालेंगे. immediately put it into water. आपको इसमें बोला है कि वॉच ग्लास में डालो. दिस इज व्हाट अ वॉच ग्लास इज लाइक. ओके. थोड़ा सा कर्व होता है इसमें, ताकि इसमें थोड़ा सा आप पानी डालो, उसके अंदर यू जस्ट पुट द अनियन पील, राइट? एंड देन पुट दैट पीस ऑफ स्किन ऑन अ स्लाइड. व्हाट इज अ स्लाइड लाइक? स्लाइड ऐसा होता है. हाँ, ऐसा आपको दिख रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा होगा. सो दिस इज अ स्लाइड एंड यू पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और या फिर ग्लिसरीन डालो और ब्रश या फिर नीडल से उसके ऊपर वो स्किन ऐसे ढक देते हैं. हाँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है. एंड देन यू यहाँ पे इफ यू ऑल्सो सी दिस डायग्राम दैट आई हैव पील्ड दिस राइट हियर एंड यूजिंग फोर्सेप्स, दीज आर फोर्सेप्स, ऐसे निकालते हैं, राइट? वॉच ग्लास में डालेंगे, फिर स्लाइड के ऊपर रखेंगे, स्लाइड पे एक ड्रॉप ग्लिसरीन या पानी डालेंगे, उस पे सैफ्रोनिन सॉल्यूशन डालते हैं. व्हाट डज सैफ्रोनिन डू? इट ब्रिंग्स अ पिंकिश स्टेन, क्योंकि सिंगल लेयर होता है ना, तो उसमें कुछ कलर नहीं होता. if you see this peel, so you have to be able to see it properly, so there has to be a slight color to have a contrast against the light. So ये ग्लिसरीन वगैरह डालते हैं एंड उसके ऊपर देन लाइक यू सी हियर, ग्लिसरीन डालेंगे. यहाँ पे एक नीडल होता है, यू यूज दिस नीडल. ऐसा नीडल होता है पतला सा. ये नीडल से वो आप कवर स्लिप डालते हो. दिस इज अ स्मॉल कवर स्लिप, ऐसा छोटा सा होता है, राइट? तो ये कवर स्लिप डालेंगे एंड इसके ऊपर ऐसे वो
करेंगे, यू हैव टू एंश्योर देयर इज नो बबल्स, एंड फिर ये माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं. अब मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है दिखाने के लिए, सो आई शोड यू द बेसिक थिंग्स, एंड देन यू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. देयर हैव टू बी नो बबल्स. एंड माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, आई डोंट थिंक यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. एक जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पे आईपीस होता है, दिस इज वेयर यू सी इट फ्रॉम, ऐसे ऊपर से देखते हो, यहाँ पे आप स्लाइड रखते हो, एंड यहाँ से लाइट आता है नीचे से, राइट, यहाँ पे ऐसे आता है और वो ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाता है. सो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आता है, एंड देन यू सी इट फ्रॉम हियर, सो यू सी इट अगेंस्ट लाइट, इसलिए आपको कुछ कलर चाहिए होता है, राइट. एंड फिर यहाँ पे आप देखते हो, एंड देन यू विल सी समथिंग, राइट, बिकॉज यू हैव टेकन द एपिडर्मिस ऑफ द अनियन. You will see something. What will you see? You will see something like this. ये जो है ना, ये saffronin stain is generally pink, ये थोड़ा purplish दिख रहा है, but saffronin का stain ना, I have an old tissue that has saffronin का stain. इस कलर का होता है saffronin का stain. ये मेरे कॉलेज डेज से है. सो दिस इज द सैफ्रनिन, और यहाँ पे ऐसा आपको अनियन पील दिखेगा, या यू विल सी दीज आर सेल्स. ये जो एक आपको यूनिट दिख रहा है इसको सेल कहते हैं. दिस इज वन सेल एंड दीज आर मेनी मेनी सेल्स. एक ही सेल नहीं होता है, मेनी सेल्स. एंड ये क्या होता है, ये सारा लेयर क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे इन द सेम वीडियो. सो अ सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है एकदम. सेल इज द बेसिक यूनिट, और उससे फिर आगे सारा बनता है. एंड ऑल अनियंस विल हैव द सेम सेल्स. यानी एक अनियन के सारे सेल्स ऐसे दिखेंगे, दैट इज नॉट द केस, राइट. ऐसा नहीं है कि अनियन हर जगह हर सेल लेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा. सेल्स भी अलग अलग दिख सकते हैं, बट taken from the same place the onion will have the same cells. यानी सेम सेल से अनियन बना हुआ है. एक अनियन का जो सेल्स हैं, ये अनियन है, और दूसरे अनियन के जो सेल्स हैं वो सेम होंगे. इट डजेंट मैटर व्हाट वे यू टेक इट फ्रॉम, कहाँ से. जैसे एटम का बोला था ना कि एक एलिमेंट के जो सारे एटम्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी द सेम नो मैटर वे यू टेक दैट एलिमेंट फ्रॉम, वैसे ही इसका भी होता है कि एनी काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म विल हैव द सेम टाइप ऑफ सेल्स नो मैटर वे यू टेक देम फ्रॉम. एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स. सिर्फ इस टाइप के सेल होता है ऐसा नहीं है, देर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. वी विल सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स फर्दर इस चैप्टर में भी एंड आगे के चैप्टर्स में भी आपको है. And okay, so some organisms are also single cell. Let's say onion जो है ना, onion you can hold it in your hand, it's very big and you can see that there are a lot of cells. इधर छोटे से पीस, ये तो बहुत छोटा सा पीस लिया होगा, उसमें इतने cells दिख रहे हैं, but there are certain organisms that are just composed of one cell. यानी इतने ही सेल जितने बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. You cannot see them with your naked eye. You have to use a microscope. वो आगे देखेंगे हम. Those are single cell organisms भी होते हैं, but most of us है humans, सब whatever you see, whatever life you see is multicellular, right? Many cells का होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं. Okay, so there's some information that you must see. ये आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है, साइंटिस्ट के नाम वगैरह हैं. I think you should know this. So Robert Hooke discovered the first observed cells in 1665, right? अभी हमने वो देखा था, उसने कॉक सेल से किया था. It was Leeuwenhoek in 1674 discovered free living cells in pond water. उसने pond water लिया और slide microscope के नीचे देखा. These were microscopes, थोड़ा सा improved versions है रॉबर्ट हुक के microscope से, but these were microscopes that were not very advanced. So एकदम ही उस distinguish नहीं कर पा रहे थे, बस वो दिख रहा था, free living cells दिख रहे थे, right? So unicell जो हमने देखा ना, single cell organism, वैसे भी देखे ल्यूवेनहॉक ने. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. एटम का न्यूक्लियस होता है ना, वैसे सेल का न्यूक्लियस होता है. अभी आपने पीछे वाले स्लाइड में देखा होगा कि सेल ऐसा था और बीच में ऐसा ग्रीन सॉरी पर्पल था, उसमें पर्पल डॉट था, दैट इज न्यूक्लियस. सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. पुरकिन्ये in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of cell. प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या फिर साइटोप्लाज्म, आगे हम पढ़ेंगे. इट इज सेल के अंदर ये सारा आगे ये जो है ना, ये सारा, दैट इज ऑल प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म. Cell theory was given by Schleiden and Schwann separately. Schleiden in 1838 and Schwann in 1839. It says that all animals and plants are made up of cells and cell is the basic unit of life. ये एक, this is just one sentence, but you should remember कि किसने दिया था, Schleiden and Schwann separately, but you can just say Schleiden and Schwann. And so there is one more thing, Rudolf Virchow
ओके, ये जर्मन वर्ड है रोबोट फियशो, यू कैन कॉल इट फियको और विरको इन इंग्लिश, राइट? रुडोल्फ विरको इन 1855 गेव दिस सेंटेंस ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये आपकी बुक में नहीं है बट दिस इज अ वेरी फेमस थिंग, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस यानी ऑल, सो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी एक सेल होता है उसी से दूसरे सेल्स आते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग, इसलिए आई थॉट यू शुड नो। रुडोल्फ विरको ने बोला था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका हम आगे भी देखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर हाउ व्हाट इट मीन्स। एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was discovered in 1940। जैसे हमने ये लोग देख रहे थे ना, तो इट वाज वेरी बेसिक एकदम माइक्रोस्कोप था, जैसे अपने लैब वगैरह में भी होते हैं आजकल। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ वेरी high-fundu microscope and you can see a lot of great very tiny things in great detail like complex cells, structure of cells and its organelles वगैरह एकदम बहुत डिटेल में दिखता है। इट्स वेरी इट्स अ वेरी गुड थिंग, 1940 में वो डिस्कवर हुआ था, राइट? Okay, so we talked about cells that were made of a single cell, right? So these are called single celled organisms or unicellular organisms. Uni means one. Uni means one, right? Unicellular. So there are things like amoeba. This is amoeba. Then there is paramecium. ये paramecium होता है, या फिर you can have chlamydomonas, जैसे ये these small things you see, these are chlamydomonas. This is something called euglena, right? So these are also ना, ये ना, these are not plants or animals, ऐसे नहीं होता। what these are called protists, they are protozoa, यानी they are proto एकदम primary, so primary animals, protozoa एकदम primary animals हैं made of a single cell। this is an amoeba, this is a paramecium, these are euglena, this is chlamydomonas, and chlamydomonas is a plant, it's a green algae, it has chlorophyll, आपको आगे दिखेंगे। it is a plant, like it is a very very tiny plant, एकदम unicellular plant होता है। paramecium is also a protozoa, it is a protist, वो भी this will come in the later chapters but you should एक जनरल पता होना चाहिए। euglena is somewhere between plants and animals, it is also a protist, right? These are unicellular organisms. Then there are organisms that are multicellular. Whatever organisms you can see are all multicellular. Human beings, plants, dogs, cats, rats, snakes, all kinds of plants that you see, chote plants, bade plants, fungi, mushrooms, whatever you see are all multicellular organisms. Okay. So in multicellular organisms, what happens is in unicellular organisms there is only one cell. So उस पूरे सेल में उसकी जिंदगी होती है, यानी everything it this is life, ये it doesn't come together with other cells to make something, make a bigger organisms. But in multicellular organisms, the same kind of cell or different kinds of cells come together and they form a kind of a relationship to have something to give rise to bigger organisms, so it gives rise to various forms of life, and multicellular organisms have evolved from unicellular organisms। okay, so ये जो थे ये एकदम basic है, ये एकदम प्राइमरी जो आते थे, तो पहले the first life that came into being was unicellular, and then eventually वो unicellular combine होके कुछ associations करके they became multicellular organisms, right? So unicellular organisms have evolved to give us multicellular organisms। there are different types of cells, यानी मैं पहले तो humans का दिखाती हूँ because this is given in your book, right? So humans are also made up of many types of cells। so this is a smooth muscle cell, smooth muscle cell, it is called a myocyte। साइट का मतलब होता है सेल, साइट। अब कभी आपका ब्लड रिपोर्ट अगर आपने लिया हो ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह आप देखोगे तो दिस इज ब्लड सेल्स, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द ब्लड सेल्स इज लिम्फोसाइट, राइट? तो साइट का मतलब होता है सेल, एंड उसके आगे जो होता है दैट इज मायोसाइट होता है, देन यू हैव लिम्फोसाइट, देन यू हैव नर्व सेल विच इज अ न्यूरॉन,
न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं, एंड दिस इज, ये आपका, आपने बहुत बार सुना होगा कि न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं वगैरह, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड इट, बट कभी न्यूज में वगैरह आ ही जाता है न्यूरॉन्स के बारे में, राइट? दिस इज एन ओवम, दिस इज अ स्पर्म, दीज आर गैमीट्स, these are specialized kind of fertilization के लिए, these are cells, these are called gametes. This is a bone cell, this is an osteocyte, right? Osteocyte, this is a fat cell which is an adipocyte. So these are different names for cells, और ये सारे अपने human body में होते हैं, these are all found in human bodies, और these are all differentiated cells, ये ना सारे specialized cells होते हैं, ये कुछ ना कुछ special function करते हैं, all of these have certain specific functions only, ये और कुछ नहीं करते हैं, they are meant for that function, they do only that function, राइट? सो ऐसे नहीं है कि ब्लड सेल जो है वो कुछ मसल का काम करेगा, या फिर फैट सेल है वो एकदम ही न्यूरॉन जैसे आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन ब्रेन में काम करने के, ऐसे नहीं होता है, दे ऑलवेज हैव सर्टन functions and they are called differentiated or specialized cells, right? ये plants के होते हैं, plants में जैसे they are basic collenchymatous cells होते हैं, parenchymatous cells होते हैं, पतले होते हैं, collenchyma के होते हैं, उसमें thickening होती है, sclerenchyma cells are dead cells, वो ऐसे जो इसने देखा था ना, इसमें तो फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने जो देखे थे, दिस वाज स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स, वो बहुत थिक होते हैं, दे आर डेड, दे आर कॉर्क के जो होते हैं वगैरह, सो यू विल, ये दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इट इज गुड टू नो ऑल दैट। अब जैसे प्लांट का देखोगे, प्लांट इफ यू कट अप ना प्लांट लीफ ना, यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ऊपर का सेल अलग होता है, हाँ ये एपिडर्मिस होता है, यहाँ पे कुछ और सेल होता है, यहाँ पे कुछ और सेल होता है, एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स, ऑल डूइंग डिफरेंट फंक्शंस, दे ऑल वर्क टुगेदर, दैट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ये होता है, दे ऑल वर्क टुगेदर, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, डिविजन ऑफ लेबर होता है, एंड दे ऑल कम टुगेदर एंड दे डू ऑल दोज परफेक्टली वेल, एकदम अच्छी तरह से करते हैं, सो इट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जैसे एक्चुअल माइक्रोस्कोप के नीचे का देखा हो अगर प्लांट को, अगर आप कट करोगे स्टेम ना, तो ऐसे दिखेगा, तो यू विल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ये बीच का सेल अलग है, ये सेल अलग है, यहाँ के बीच के सेल्स अलग है, ये बाहर के सेल्स अलग है, सो दिस इज व्हाट अ ये जैसे प्लांट का जैसे स्टेम इज मेड अप ऑफ लाइक दिस ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेल्स, ऐसे ये ऑल इंडिविजुअल छोटे छोटे दीज थिंग्स आर कॉल्ड सेल्स, and they're made of individual cells, all different kinds, okay? So some information about cells. So cells, the shape and size of the cells is related to specific functions. For example, हमने अभी न्यूरॉन देखा था, देखा ना अभी वो नर्व सेल देखा था, नर्व सेल कैसा होता है, ऐसा वो ऐसा ऐसा ऐसे होता है, ओके आई एम नॉट ड्राइंग इट वेरी वेल सो रहने दो पीछे जाके देख लो, नर्व सेल होता है, एंड जो सेल्स होते हैं दे ऑल हैव different functions and they have different specific shapes and sizes for that specific function. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा, दे डोंट हैव एक ही सेल होता है, तो उनका वो इट जस्ट कीप्स चेंजिंग शेप अकॉर्डिंग टू व्हाट द नीड इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Then there are some cells like I told you, nerve cells which have a typical shape, एकदम यहाँ पे they have this head, ऐसा 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 ऐसा, and then they have this ऐसा होता है, एंड देन दे यहाँ से कनेक्ट करते हैं या इसके साथ, यानी ऐसा शेप होता है कुछ नर्व सेल्स का, दिस इज रियली बैड, एंड देन each cell like I said performs basic functions characteristic of all living cells. All cells have a certain basic characteristic function, हर सेल का कोई ना कोई फंक्शन होता है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस होते हैं वो सेल्स में परफॉर्म होते हैं, ओके? देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन द सेल्स लाइक आई टोल्ड यू, इवन सेल्स के अंदर इनसाइड द सेल, even within the cells, जैसे एक multicellular organism में different kinds of cells होते हैं which all perform different kinds of functions. Even within the cell there is a division of labor which we will see further ahead in this video. So like there are organs in human beings कि अपना heart होता है, lungs होते हैं, heart pumps the blood, lung helps in respiration, ये जो सारे होते हैं, there are certain organelles in cells, and organs in humans, cells में क्या होता है, cells में होता है organelles, and these are specific components which perform specific functions. Like I said, there is division of labor even within the cell, तो cell के अंदर भी there are small जैसे एटम में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, वैसे सेल के अंदर भी there are organelles which perform specific functions, okay? So हर
छोटे छोटे चीज का भी सेल के अंदर भी, सेल इज द बेसिक यूनिट, उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, वो वी विल सी देम फर्दर अहेड. Again, cells live and perform, cell lives and performs functions due to these organelles. Okay, उस ऑर्गेनल्स की वजह से ही सेल चल रहा है, वो जी रहा है, इट्स डूइंग इट्स वर्क प्रॉपर्ली. ओके, and all cells have the same organelles no matter the organism or the function. Organelles are of different kinds. बहुत different kinds के organelles होते हैं. It is not necessary that one cell will have all the same organelles, but organelle ऐसे नहीं होता है कि प्लांट का जो भी एक सेल होगा ना उसके सब में सेम ऑर्गेनल्स होंगे, एनिमल के इसमें सब सेम ऑर्गेनल्स होंगे. ऑर्गेनल्स डोंट चेंज. ऐसा नहीं है कि एक में न्यूक्लियस है, यानी अब न्यूक्लियस आपने पढ़ लिया, जैसे रॉबर्ट ब्राउन हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, दूसरे में न्यूक्लियस नहीं होता. देयर सर्टेन ऑफ कोर्स स्पेशलाइज्ड सेल्स, वो अलग बात है. बट ऑर्गेनिज्म जैसे है, जैसे मैंने अनियन का बोला कि एक अनियन को आपने लिया, अनियन के वो अंदर का पील का लिया, हर अनियन का जो अंदर का पील होगा इट विल शो द सेम काइंड ऑफ सेल्स, एंड ऑल दो सेल्स विल हैव द सेम ऑर्गेनल्स. राइट, एक सेल जो एक टाइप का सेल होता है उसमें सारे सेम टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके ऑर्गेनल्स चेंज नहीं होते हैं. ओके, दिस इज लाइक एन एलिमेंट का आपने जैसे देखा था कि एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वगैरह, इट इज द सेम. ओके. ओके, so we come to the end of this chapter. I am going to make this a small chapter because आगे जो है ना it's quite lengthy, so it become a very lengthy video, इसलिए this is the basic that we have learned, and इसके आगे we will do part 2 and part 3 में we will do it further. What is cell? Cell is a fundamental organizational unit of life, or it is a basic functional unit of life, that is a cell. Right, हमने cell का photo भी देखा. Cells can be of various different types which all come together to form an organism. This happens in multicellular organisms. Multicellular organisms में there are many different kinds of cells which have different functions, right? Or unicellular organism which is only one cell and उसके अंदर there are many things and it just lives alone, एक ही single cell रहता है. और multicellular organisms जिसमें different kinds of cells come together to form a multicellular organism. In each of those different kinds of cells there are different functions. In a multicellular organism बहुत different types of cells होते हैं जो एक साथ आते हैं, they all perform different kinds of functions, that is called division of labor, even within the cell, even within a like a unicellular organism, or even within individual cells of a multicellular organism. Each cell has organelles which perform different functions, that is also division of labor. There are some cells which perform specialized functions, right? For example, we saw neurons, or we saw muscle cells, myocytes, or we saw bone cells, osteocytes. These have specialized functions. In animals and of course plants also, but they are called differently in plants. In animals we have something called stem cells which are undifferentiated, which do not perform specialized functions, right? Those can grow and specialize into whatever cell is needed. यानी एक बेसिक सेल होता है जिसको किसी किसी चीज के लिए अगर लगता है तो वो बढ़ के इट बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड सेल. जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी 9th में हो, राइट? तो अभी आप 11th 12th के बाद many of you will take science, many of you will take commerce, many will take arts, और आप ऐसे करोगे, you will start, उसके बाद आप graduation करोगे, post graduation करोगे, job करोगे, eventually you become very specialized, right? तो that is what a cell is also like, कि आप अभी stem cell हो, आपको सब basic information मिल रहा है, हाँ, and then eventually you become specialized in your field. तो आप अगर कॉमर्स में जाओगे 12th के बाद, या फिर आप एमबीए करोगे, तो आपको साइंटिस्ट वाला कुछ पता नहीं होगा. दैट इज सेल्स का वैसे ही होता है. इवेंचुअली दैट बिकम डिफरेंशिएटेड और स्पेशलाइज्ड, एंड देन दे डोंट डू एनी अदर फंक्शन, राइट? सो अभी स्टेम सेल्स जो होते हैं ह्यूमंस वगैरह में और एनिमल्स में, दोज आर अनडिफरेंशिएटेड, दोज डोंट हैव एनी स्पेशल फंक्शंस, and all cells have the same organelles. Okay, plants में भी होते हैं, they are not called stem cells. जो होते हैं without any function, they are not called stem cells, but plant में भी होते हैं, right? So and all cells have the same organelles. Okay,
सो दिस इज फॉर पार्ट 1. मैंने इसको शॉर्ट रखा बिकॉज पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आर लॉन्गर एंड मोर इम्पॉर्टेंट. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट एज द बेसिक. Please watch part 2 and part 3. Okay, and if you like this video, please like it on YouTube या फिर नीचे comment करो. It gives me more motivation to make such nice videos for you. Okay, so thank you so much and see you for part 2 and part 3.